Mark your initial and final position. Make sure you have all the information on the waypoint. And mark it off on the chart. You would then draw a freehand passage based on recommendation by sailing direction or ocean passages of the world. You decide your waypoints. Then find 2 new waypoints to nearest grid line, or to get good numbers. You don't want ugly numbers like 3.333 or 3.003. It makes it much easier to feed in your GPS vectors. Erase the freehand drawing. And then mark off. Join these waypoints with straight line. You then mark your course and distances. Make sure these course and distances are elongated vertically, because it's a bit like road map or road marks. As you would be using them flat on the chart table, they should be elongated, much more readable that way. You would then mark your logo areas, which are simple hatch lines like these. Do not obscure relevant information on the chart by making very thick lines. A mark called the master point that you can find out from your master. Standby engine point. Contingency anchorages which are pre-decided. Points just in case you have any problems. You can go there to anchor. So now you see beta, in this particular diagram you see we have our waypoints. The latitude and longitudes of the waypoints is mentioned. Then the line joining the waypoint which represent our courses and distances, they are also shown. And along every leg of the passage, you have the course and the distance mentioned. Okay, the arrow indicates the direction in which you are going. You have the course, you have the distance on each of the passage. Then no-go areas are marked where the ship should not go in any case. When you are calling the master, that point is mentioned. The standby engine points is mentioned. Contingency anchorages are mentioned. All these things are mentioned. So whatever is written here and the same thing shown in the diagram, this basically tells you कि आपको अपने चार्ट पे पैसेज प्लान में क्या क्या चीजें शो करनी है. So does this solve your doubt beta, how the passage plan is to be done on the chart? Great. ये मैंने आपको भेजा हुआ बेटा पैसेज प्लान का, जो मैंने आपको नोट भेजा था उसमें ये डायग्राम भी है और उसमें ये सारे पॉइंट्स भी मेंशन है. राइट, यू वांट मी टू सेंड यू अगेन द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस? नो सर, ये वाला ठीक है सर, ले लिया सर स्क्रीनशॉट. ओके बेटा, ग्रेट. सो लेट्स प्रोसीड अहेड देन. रिगार्डिंग मार्किंग आ रहा था सर कि उसके अंदर जैसे इसके अंदर मार्किंग की हुई है एसबी, कॉल द मास्टर एंड वे पॉइंट्स की, तो उसमें कैसी मार्किंग होगी पायलट को लेकर? बेटा बिल्कुल ऐसी ही मार्किंग होगी, बिकॉज व्हेन यू गो फॉर पिकिंग अप द पायलट पॉइंट पे पहुंचने से पहले इंजन शुड बी रेडी फॉर मैनूवरिंग एंड द मास्टर शुड बी ऑन द ब्रिज बिफोर यू स्टार्ट टू अप्रोच फॉर द पायलट पॉइंट. सो एग्जैक्टली सेम मार्किंग यू विल हैव देयर. सर उसके अंदर और कोई पॉइंट्स भी रेडी कर सकते हैं, लाइक वो पायलट लैडर के लिए या और कुछ? आप चाहो तो उसमें ऐड कर सकते हो बेटा. देयर इज लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन विच कैन बी फेड इन द पैसेज प्लान. ओनली थिंग इज, जो यहाँ पे देख रहे हो आप, दीज आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन पॉइंट्स विच शुड बी देयर. इनको छोड़ के आप और कुछ भी डाल सकते हो. ओके, prepare the pilot ladder or call the crew for receiving the pilot. ये चीज़ें भी मार्क की जा सकती हैं, पर सिर्फ इस चीज़ का ध्यान रखना कि ऐसा ना हो कि आपका जो पैसेज प्लान है ये बहुत क्राउडेड हो जाए. द चार्ट शुड रिमेन क्लियर
ऐसा ना हो कि ज़्यादा इंफॉर्मेशन डालने के चक्कर में हम चार्टेड इंफॉर्मेशन को ऑब्सक्योर कर दें. दिस शुड नॉट हैपन. अदरवाइज यस, यू कैन पुट दिस इंफॉर्मेशन. एंड सर फॉर दिस लोगो एरिया हम लोग ऐसे ही रफली ड्रॉ करेंगे फ्री हैंड से. हाँ, दैट्स राइट बेटा. ओके सर. No-go area will not have any regular shape or feature, so you can draw it freehand. और सर अकॉर्डिंग टू द चार्ट हमें और कुछ पेंसिल करने की जरूरत है क्या, लाइक टाइड या फिर करंट उस एरिया में, या और कुछ ऐसा ही? That will depend upon where you are. जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ. आप अगर पैसेज प्लान बना रहे हो और आप देख रहे हो कि यू आर गोइंग क्लोज टू ए TSS. अब जब आप TSS के पास जाओगे तो TSS के पास तो बेटा हैवी ट्रैफिक रहेगा. So you can make a marking there, heavy traffic expected. Okay. So another example could be, अगर आप कोई पैसेज प्लान बना रहे हो, वहाँ पे कोई रिपोर्टिंग पॉइंट आ गया, वहाँ पे उन्होंने लिख रखा है यू शुड रिपोर्ट टू दिस पर्टिकुलर पोर्ट, तो फिर आप वहाँ पे एक मार्किंग करोगे दैट वी शुड बी रिपोर्टिंग टू दिस पर्टिकुलर पोर्ट. ओके. सो डिपेंडिंग अपॉन वेयर यू आर, कोई भी पर्टिकुलर सिचुएशन जो नेविगेटर को, ड्यूटी ऑफिसर को पता होनी चाहिए, वो आप अपने पैसेज प्लान में डाल सकते हो. सर रिगार्डिंग पोजीशन इंटरवल, शुड वी पेंसिल दैट आल्सो? यस, यू कैन बेटा, यू कैन. ओके सर, थैंक यू सर. ओके. ओके, चले बेटा, आगे चले. You would also mark things like parallel indexing lines, such as parallel lines between the course line to a fixed object, which you can use for parallel indexing later. You would mark reporting points, clearing bearings, any speed information, V-level positions, board points. So if you look beta, these are other items which can be showed or marked in your passage plan. पैरेलल इंडेक्सिंग लाइंस, अगर कोई भी रडार कॉन्स्पिकुअस पॉइंट आपको वहाँ पे मिल रहा है, जैसे इस केस में वी हैव दिस पर्टिकुलर बॉय, वी कैन मार्क अवर पैरेलल इंडेक्सिंग लाइन. ये डिस्टेंस हम शो कर सकते हैं, जैसे इस केस में 4 miles. So you can have this parallel indexing set in your radar at 4 miles and it will immediately tell you whether you are moving on your track or you are having some cross track error. Reporting point, as I told you, clearing bearings, ये आप मार्क कर सकते हो. स्पीड इन्फो, कहीं पे अगर आपको स्पीड को रिड्यूस करना है, TSS आ रही है, आपको स्पीड रिड्यूस करनी है, दैट कैन बी मार्क्ड. व्हील ओवर पोजीशंस, बिफोर एवरी ऑल्ट्रेशन वी शुड बी मार्किंग ए व्हील ओवर पोजीशन, द पोजीशन वेयर द व्हील ऑर्डर, हेल्म ऑर्डर शुड बी गिवन. एबोर्ट पॉइंट, जब भी हम किसी पोर्ट में या रिस्ट्रिक्टेड एरिया में एंटर करते हैं, तो दिस इज द पॉइंट before which we can stop our passage. एक बार हमने इसे क्रॉस कर लिया, then we have to continue till the time we reach the destination. So ये चीज़ें भी अपने पैसेज प्लान में मार्क की जा सकती हैं, डिपेंडिंग अपॉन अगर ये आपकी पर्टिकुलर सिचुएशन में एप्लीकेबल है. सर प्लीज पैरेलल इंडेक्सिंग थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर सकते हैं सर, क्या होता है? बेटा पैरेलल इंडेक्सिंग एक ऐसा मेथड है जिससे हमें ये पता चलता है कि हम अपने ट्रैक पे चल रहे हैं या कोई क्रॉस ट्रैक आ गया है. क्रॉस ट्रैक का मतलब है अपने ट्रैक के राइट साइड में या लेफ्ट साइड में चले गए हो. ये होता है विद द हेल्प ऑफ रडार. रडार में हम अपने कोर्स के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करते हैं, जैसे ये लाइन देख रहे हो आप, दिस लाइन, और ये लाइन आपके ट्रैक से कितनी दूर होनी चाहिए इसे आप सेट कर सकते हो. जैसे इस केस में हमने 4 miles के डिस्टेंस पे ये एक लाइन बनाई है विच इज पैरेलल टू माई ट्रैक. ये लाइन आपको रडार की स्क्रीन पे दिखनी शुरू हो जाती है. अब जब आप इस एरिया में हो और ये लाइन आपको दिख रही है, अगर आप ये जो बॉय है, वेस्ट पॉइंट लेज, ये वाला जो बॉय है, इस बॉय को अगर इस लाइन पे रखोगे तो इसका मतलब है कि आपका शिप इस ट्रैक पे चल रहा है. अगर ये लाइन बॉय के राइट साइड में चली गई तो इसका मतलब आपका शिप भी ट्रैक के राइट साइड में आ गया है, स्टारबोर्ड में चला गया है.
और अगर ये लाइन बॉय के इस तरफ आ गई टुवर्ड्स द साउथ वेस्ट ऑफ द बॉय, तो इसका मतलब आपका शिप भी अपने ट्रैक के साउथ वेस्ट में चला गया है। दिस इज द पैरेलल इंडेक्सिंग मेथड बेटा। थैंक यू सर। सर व्हाट आर क्लियरिंग बेयरिंग्स? बेटा मैंने जो नोट आपको भेजा था आपने वो पढ़ा है? सर अभी देखा नहीं है। ओके, जस्ट हैव ए लुक देयर। मैंने वहां पे 2 डायग्राम्स बनाई हैं और डायग्राम के साथ समझाया है कि क्लियरिंग बियरिंग क्या होती है। ओके, जस्ट हैव ए लुक, अदरवाइज आफ्टर द वीडियो आई विल शो यू हियर, डोंट वरी। Once you've done that, then you would fill up your passive planning table and discuss the plan with your bridge team. And that's the planning stage. ओके बेटा, अब बेटा अभी जो काम हमने किया ये सब होता है चार्ट पे। हमने सारी मार्किंग्स बना दी, पैसेज बना दिया। अब हम आते हैं अपनी आंसर शीट पे। जब आप पैसेज प्लानिंग चार्ट पे करोगे तो आपको आंसर शीट में भी कुछ इन्फॉर्मेशन डालनी होगी। उस इन्फॉर्मेशन में आएगा ये टेबल, पैसेज प्लानिंग टेबल। इस टेबल में क्या क्या चीज़ें होंगी? मिनिमम आइटम्स, वे पॉइंट के लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड्स, कोर्स एंड डिस्टेंस ऑफ ईच लेग जो आपने चार्ट पे मार्क किया है, यूकेसी विच इज एक्सपेक्टेड, आप लिख सकते हो वहाँ पे क्या यूकेसी एक्सपेक्टेड है, what is the speed with which you will be moving on that particular track, and what will be the steaming time. Okay, however if you are running short of time तो आप कम से कम latitude, longitude, course और डिस्टेंस, मिनिमम ये 4 आइटम्स अपनी आंसर शीट में ज़रूर शो करो जब आप पैसेज प्लानिंग का क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो। अगर आपके पास टाइम है तो आप मिनिमम यूकेसी जो लेग पे आने वाली है, स्पीड, स्टीमिंग टाइम, और अगर कोई रिमार्क्स हैं जैसे ट्रैफिक सेपरेशन स्कीम है, स्पीड रिड्यूस करनी है, मास्टर कॉल करना है, सो वट एवर रिमार्क्स यू कैन पुट इट हियर। So this is the table which we should be making in our answer sheet. So ये 2 काम हैं बेटा important हमारे। One is marking the passage plan on the chart. Second is making this table on our answer sheet. So अब ये दोनों चीजें क्लियर हो गई बेटा? सर ये शीट हमको मिलेगी क्या एग्जाम हॉल में या खुद बनानी है पेन से? नहीं बेटा, ये शीट आपको नहीं मिलेगी, ये आपको खुद बनानी पड़ेगी आंसर शीट पे। ओके, ये भी मैंने अपने पैसेज प्लानिंग नोट में आपको शीट बना के दी हुई है, सो यू कैन रेफर इट दिस शीट फ्रॉम द पैसेज प्लानिंग नोट। ओके, लेट्स मूव अहेड। Thanks for watching. Okay beta, so this was the passage planning video. Let me show you the note which I have sent you. So beta, ये मैंने आपको भेजा हुआ है passage planning note. You see, these are the steps which you have to follow when you are marking everything on the chart. Clearing bearings. ये clearing bearing क्या होती है बेटा? They are the bearings of prominent points that keep you clear of dangers. इसीलिए इनका नाम रखा गया है clearing bearings. Generally we use a prominent mark on the chart that we will be able to identify, जिसको हम देख पाएंगे आसानी से, ऐसा कोई मार्क clearing bearing के लिए चूज किया जाता है। So what is a clearing bearing बेटा? देखो, now you see there is a landmark in this particular area. हमने इसकी बियरिंग बना रखी है क्लियरिंग बियरिंग 045 और यहाँ पे हमने लिखा हुआ है माइनस और यहाँ पे लिखा हुआ है प्लस। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है, यू सी जहाँ पे माइनस है दैट इज अ सेफ जोन, इट इज अ सेफ जोन, और जहाँ पे प्लस है दैट इज अ डेंजरस जोन। सो कभी भी आपकी बियरिंग अगर 045 से कम है, आप इस ऑब्जेक्ट की बियरिंग लेते हो और आपको इसकी बियरिंग 045 से कम मिल रही है, तो आप सेफ जोन में हो। नेगेटिव का मतलब है कम।
और कभी भी अगर आप इस ऑब्जेक्ट की बियरिंग लो और ये आपको 045 से ज़्यादा मिले तो इसका मतलब है कि आप डेंजर में हो, प्लस मीन्स ज़्यादा। दिस इज द मीनिंग ऑफ क्लियरिंग बियरिंग। समझ में आया बेटा? यस सर। वेरी गुड। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो बेटा। सर जब एक्चुअली में हम जब ये पैसेज प्लानिंग का करते हैं तो जैसे ये छोटे छोटे जो आइसलैंड्स होते हैं या कुछ भी होता है तो हम इसमें सर मार्क करके हम इस पे ये भी तो लिख देते हैं सर, नो गो एरियाज। हाँ बेटा, दैट ऑल्सो कैन बी डन। अब यहाँ इन्होंने जो क्लियरिंग बियरिंग बनाई है इसकी जगह पे आप यहाँ पे ऐसा एक नो गो एरिया भी बना सकते हो। ओके, लाइक दिस, ऐसे भी आप बना सकते हो। एंड यू कैन राइट हियर नो गो, दैट इज ऑल्सो एक्सेप्टेबल। जो भी आपको अच्छा लगे, आप दोनों में से कोई भी काम कर सकते हो बेटा। ओके सर, थैंक यू सर। ओके ओके बेटा, ये जो टेबल की मैं बात कर रहा था बेटा, ये टेबल मैंने यहाँ पे शो किया है। सो दिस इज द टेबल विच यू हैव टू मेक ऑन योर आंसर शीट। सेम थिंग mentioned here, let, long, course, distance. These columns, if you have time, you fill them up. If you don't have time, you can leave them. सर ये यूकेसी और स्पीड को कैसे डिसाइड करेंगे? ओके बेटा, जब आप बेटा चार्ट पे कोई भी एक लेग को ड्रॉ करते हो, लेट अस से इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक जा रहे हो आप देखो कि उस पर्टिकुलर लेग में सबसे मिनिमम डेप्थ कौन सी दिखाई दे रही है। लेट अस से वहाँ पे आपको डेप्थ मिनिमम जो दिखाई दे रही है वो है 20 मीटर्स मिनिमम, बाकी सारी इससे ज़्यादा है। यहाँ पे 34 है, यहाँ पे 27 है, ओके, यहाँ पे लेट अस से 42 है। दिस वे मिनिमम डेप्थ आपने देख ली आपके पैसेज पे और वो 20 मीटर्स आ रही है। अब जो भी आपका ड्राफ्ट है, लेट अस से आपका ड्राफ्ट जो है वो 10 मीटर्स है। सो आप बता सकते हो बेटा यूकेसी कितनी होगी? 10 मीटर्स ड्राफ्ट, 20 मीटर डेप्थ। 10 सर। वेरी गुड। सो यूकेसी मिनिमम विच इज एक्सपेक्टेड इज 10 मीटर। सो आप यहाँ पे लिख दोगे 10। अब इसका पर्पस क्या है? ड्यूटी ऑफिसर डेप्थ को मॉनिटर करता है और कभी भी अगर उसे यूकेसी 10 से कम मिलेगी देन इट इज ए वार्निंग साइन, यू आर नॉट ऑन ट्रैक। हमारे ट्रैक पे 10 मीटर से कम यूकेसी नहीं होनी चाहिए थी। आपको अगर 10 से कम यूकेसी मिल रही है, चेक योर पोजीशन। क्लियर बेटा? यस सर। ओके ओके, सो ये वही डायग्राम है जो हमने अभी वीडियो में देखी बेटा। दिस इज विद द नोट्स, यू हैव दिस डायग्राम। द सेकंड वन। सर ये स्पीड को हाँ बोलो बेटा। स्पीड का रह गया सर। बेटा आपकी आवाज ब्रेक हो रही है बीच में, कैन यू रिपीट? हाँ सर, स्पीड कैसे डिसाइड करेंगे हम लोग? ओके, एंटायरली अप टू यू बेटा। अब जैसे इस पैसेज में आप जा रहे हो, ये जो पहली लेग है, आप इसमें कुछ भी स्पीड डिसाइड कर सकते हो। फुल अहेड पे जाना है या हाफ अहेड पे जाना है। ओके, सो टू गिव यू एन एग्जांपल, पहली लेग हमारी क्लियर दिख रही है, सो आई वुड लाइक टू गो ऑन फुल अहेड। सेकेंड लेग इज ऑल्सो क्लियर, फुल अहेड। अप टू स्टैंड बाय इंजन आई विल बी गोइंग ऑन फुल अहेड। फिर इसके बाद आई विल रिड्यूस माई स्पीड, मैं मैनूवरिंग स्पीड पे आ जाऊंगा। एंड मे बी कॉल मास्टर पॉइंट के बाद आई विल गो ऑन हाफ अहेड। सो ऐसे स्पीड डिसाइड की जा सकती है। इट इज एंटायरली अप टू यू बेटा। ओके सर। ओके ओके बेटा, so this completes the passage planning part. So are you clear now? How do we do the passage planning on the chart? What all things we mentioned on the chart? What all things we mentioned on the answer sheet? ये चीज clear हुई बेटा? Yes sir. Very good बेटा, great.
So ये note बेटा सबके पास है, so keep it safe and read this a couple of times and just before you go for your exam.